But when it comes to different admin department, try and invest them if you want to become a successful brand. Okay, it's very very important. Sometimes we overshadow. आप ये क्यों कर रहे हो? ये सब मुझे आता है. I'm the boss of the house. No. When you want to become a brand, everybody is the boss because you've hired someone. Take their ideas. It's very very important if you want to be a successful brand. It's very very important. I love you, sir. Love you. I love everybody over here, and I love you too. I love you too much. I am big fan. I'm a fan of everyone over here because you guys are here to learn. It's very important to be a student. It's very important to be a learner. Yes. I'm also learning right now. I keep learning every day. I love you. Hunger to learn. Self-belief, which is very, very important. Believe in yourself. You know, a lot of people, they shy away. They don't believe in themselves. Artistry, which is very, very important. And genuine connection. Your connection is so important with the clients, with right audience. You know, sometimes we don't have belief in ourselves. We sometimes lack confidence. You know, as a hairdresser, it's very, very important to gather that confidence. And how that will happen? That only happens when you know your job. And you will never know your job till you don't study. Till you don't see hairdressers all over the world. So that is very important. Right connection with the clients. Clients are very emotional people. Very, very emotional. And we also very emotional. And clients are always connected. If you don't connect with your clients, you will lose your clients. So that is very, very important. Just imagine a client who comes to you and you offer them tea or coffee, a black coffee with no sugar, and that client comes back to you after 4 months again and you're not there and somebody else attended that client and she gets the same coffee again. A black coffee with no sugar and a cookie on the side. She said, why? How do you remember this? Well, last time when you came, Miss Neela had fitted in the system. She'll feel, wow, this brand is superb. They remember everything, you know. How? Because you have kept everything in the system that this client likes a certain kind of coffee and a cookie on the side. She sold. Why? Because everything was in the system. It's not only about the hair data, about her taste as well. That what she drank, what she wanted and what her liked. So this is how you build connection. Your feedbacks. When the client job is done, your feedback is very, very important. Feedbacks from the clients after a week. Do you guys make call? Ma'am, how was the haircut? Are you happy with the color? Very few. It's so important. Once your job is done, it's salon ready. But is it home ready as well? No. Because whatever you do, the client should be able to achieve it. That's how we sell products. That's how we sell products to the client. Okay, when they come to the salon, we always do the job. We show them, hey, you have to use this product. Because whatever I'm doing, I'm a hairstylist, you need to achieve with the same product at home. So you need to take a feedback after a week. Okay, hi ma'am, hi sir, are you happy with the job? So start doing that. The day you will take feedback, your client will feel that you care for them. You care for them. You're trying to find out whether the haircut is fine or not, because sometimes hair might not fall in the correct manner after a week. So you should take care of your client about everything. How to be a good hairstylist? Sorry, goat hairstylist. Greatest of all time. The art, you have to elevate your craft. That is so important because today's time, things are so different. To break my hair. Can I go to the washroom? She'll go to the washroom. She'll check everything on the Google. I think so. I know better than the hairstylist. आप आज के टाइम पे किसी भी क्लाइंट को झूठ नहीं बोल सकते हो. So honesty is your key. If you want to become a brand, honest रहना बहुत जरूरी है. जब आप honest नहीं रहोगे, तो क्लाइंट आपका कभी नहीं रहेगा. So पुराने जमाने में क्या होता था?
जब आप क्लाइंट को कुछ बोलते थे, क्लाइंट को तभी पता चलता था जब वो किसी और हेडरेसर के पास जाता था कि अरे जब मैं अपने पुराना हेडरेसर था वो तो मेरे को ऐसा करता था, अभी मुझे पता चला है कि मुझे चीट कर रहा है. 10 years back, nobody used to go on Google and check, right? When you used to do consultation. But in today's time, clients will go back on Google and check what is the consultation happening with me. Okay, this is the case study. Oh, I think so. My hairdresser doesn't know anything. So you should always know what you're selling. तो अगर एजुकेशन नहीं होगा तो वो चीज कभी नहीं होगी. Trend spotting. How do we spot trends? How? International trends. Then social media. Then Bollywood trends. Am I right? कैसे ट्रेंड स्पॉट करते हैं हम? सोशल मीडिया पे देखते हैं ना क्या चल रहा है, क्या है. कलन महल चल रहा है अभी, वाओ. बालियास चल रहा था, वाओ. हाँ, इंटरनेशनल ट्रेंड क्या हो रहा है, रैंक शोज पे क्या हो रहा है, फैशन शोज में क्या हो रहा है, मूवीज में क्या हो रहा है. आते हैं ना क्लाइंट मूवी के सब फोटोग्राफ लेके कि हमको ऐसा स्टाइल चाहिए, वैसा स्टाइल चाहिए. सोशल मीडिया के फोटोग्राफ्स लेके आते हैं, बिफोर आफ्टर ट्रांजिशंस के लेके आते हैं वीडियोस. आते हैं कि नहीं आते हैं आपके पास? Yes. आते हैं. पर आप लोग क्या करते हो? वो चीज करते हो कि नहीं करते हो? आधे लोग नहीं करते. और दूसरे लोग क्यों नहीं करते हो? आता नहीं है इसलिए नहीं करते हो कि करना नहीं चाहते हो? आपको फॉलो करते सर. सर वो सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते. हाँ जी, सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते वो लोग. फॉलो नहीं करते. सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते, गूगल को फॉलो नहीं करते. नहीं नहीं, दिखाई जाए आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि एजुकेशन उस लेवल की नहीं होती है सर इस तरह से. हाँ, तो मतलब आपको आता नहीं हो करने. करने आता है बट प्रैक्टिस कम कर देते हैं. ओके. हेलो. यस. सर करने आता है बट प्रैक्टिस थोड़ी कम पड़ती है क्योंकि काम का बहुत हार्श रहता है. कोई एक हेयर ड्रेसर रहता है तो हर बार प्रैक्टिस में नहीं रहता क्योंकि वो 12 घंटे काम ही करता रहता है. ओके. ये मेरा ओपिनियन है. ओके. सो यू वांट टू से समथिंग? बेसिकली हम लोग करते हैं हर चीज़, कोशिश करते हैं कि 100%, बट 1% का ही रह जाता है क्योंकि हम लोगों ने उसकी कभी कोशिश नहीं की होती है. तो देखो अभी आप बहुत पीछे हो, ठीक है. मैं भी कह रहा हूँ कि आप बहुत पीछे हो क्योंकि आप ये चीज करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें भी आप पीछे हो, 100% नहीं कर पा रहे हो. मैं हमेशा जो चीज करता हूँ, मैं ये चीज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं इससे 10 कदम आगे चीज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. आप तो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो. जब मैं काम करता हूँ तो मैं इसके 10 कदम आगे जाने की कोशिश करता हूँ. तो हमेशा याद रखो, वॉट एवर इज इन द ट्रेंड, वॉट एवर इज हैपनिंग इंटरनेशनली, you have to go 10 steps ahead than what was happening over there to become an icon. अगर आप वही चीज कर रहे हो, you're copy pasting things, you're copy pasting everything. आज जो चीज चल रही है, this is to get inspired. इससे आप इंस्पायर्ड हो गए. अगर आप ये चीज करते रहोगे तो आप तो वही कर रहे हो जो दूसरा करता है. आप कहां से आइकॉनिक बने, आप कहां से ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम हेडरेसर बने? नहीं बने, क्योंकि आप ट्रेंड सेटर बनने चाहिए. आपका जो पोस्ट है, आपकी जो रील है, वो ले जाके लोगों को दिखानी चाहिए कि आपका नाम क्या है, तुषार, मिस्टर तुषार की जो रील है वो क्या फैंटास्टिक है. ये बंदे को फॉलो करो यार, ये पकड़ रहा है ट्रेंड, इसको क्या फॉलो करो. सो दैट्स हाउ यू हैव टू बिकम. सो गेट इंस्पायर्ड. एंड हाउ दैट विल हैपन? विद एजुकेशन, विद ब्रेकिंग द बैरियर्स, बाय ब्रेकिंग द रूल्स. And how to break the rules? First you need to know the rules. So know the rules to break the rules. अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप चीज कर रहे हो. मैं रूल्स को फॉलो करता हूं लेकिन उसको ब्रेक करता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फैशन इंडस्ट्री में मैं ग्रामर को नहीं मानता. देयर आर एस्थेटिक्स, देयर इज नो ग्रामर, देयर आर एस्थेटिक्स. मैं इसके नीचे पीली पैंट पहन लूं या ब्लू पैंट पहन लूं या लाल पैंट पहन लूं, मेरा पैंट मेरे बॉडी पार्ट तो छुपाएगा ही ना. और एस्थेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं? सो इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, बिल्डिंग योर टेस्ट. सो वो तभी होगा जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप चीजें अलग करोगे. अगर आप चीज अलग करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वॉट एवर इज हैपनिंग, यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रेंड एंड डू योर सोशल मीडिया. एंड सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की तारीख में लोग सिर्फ वो ही देखते हैं और कुछ नहीं. ओ
Oceans looking war. आलिम के पास कराया क्या? हाँ भाई, आलिम के पास कराया. My important part to become a successful hairdresser. What you consult, you need to deliver. Consultation is one thing, and deliver what you have consulted is a different thing. And what you deliver has to be 100 times better than what you have consulted to make your client happy. When I work on movie actors, it's different. When I'm working with cricketers, it's completely different. When I'm working in the editorial, it's completely different. एडिटोरियल पता है आपको किसको, जो मैगजीन्स के लिए शूट होती हैं, हाँ, या सोशल मीडिया के लिए आज की, क्योंकि आज भी कोई मैगजीन पढ़ता नहीं है, सब वही सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे दिखते हैं कि ईजी है. ठीक है, मैगजीन जब खरीदते तो बहुत महंगी आती थी, 100 रुपये की आती है. सोशल मीडिया हमारा फ्री में रहता है, सब दिख जाता है फोटोग्राफ. ठीक है, जब मैं मूवी पे काम करता हूँ मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि मूवी में कैरेक्टर बनाया जाता है. जब क्रिकेटर्स होते हैं, जब उनकी दाढ़ी होती है या बाल होते हैं, उनका जो फेड होता है बहुत अलग होता है, उनकी बियर्ड शेप बहुत अलग होती है, वो ज़्यादा शार्प रखनी पड़ती है मुझे, और हेयर भी ज़्यादा शार्प रखना पड़ता है क्योंकि वो एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो हेलमेट के अंदर काफ़ी पसीना आता है. और जब आप मूवी कर रहे हो तो मूवी का एक इमोशन बहुत अलग होता है. जब आप कैरेक्टर्स कर रहे हो, जैसे मैंने एनिमल में रणबीर कपूर की स्टाइलिंग की थी, सारी हेयर स्टाइल्स हैं. फिर अभी आपने छावा का लुक देखा होगा, विकी कौशल का, उसमें भी कुछ 4-5 डिफरेंट हेयर स्टाइल्स है. कबीर सिंह में शाहिद कपूर की डिफरेंट हेयर स्टाइल्स है. तो वो जो इमोशंस होता है वो अलग होता है, वो आपको कैरेक्टर के हिसाब से डेवलप करनी पड़ती है, बियर्ड शेप, हेयर स्टाइल. और आप मूवी कभी जूम इन करके नहीं देखते हो. कभी आपने देखा है कोई पिक्चर है जूम इन करते हुए? आप यूट्यूब पे भी कुछ देखते हो, कुछ भी फ्री में देखते हो, कुछ जूम इन नहीं करते हो. मगर जब आप कुछ आप देखते हो जूम इन करके, खुद किसको देखते हो आप जूम इन करके? कौन सा? ओह, तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करते हो. अच्छा, फोटोग्राफ, क्योंकि मूवी तो जूम होती नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके ओके जूम इन करते हो. मगर जब आप मूवी बनाते हो तो आपको पता है जो आपकी ऑडियंस है वो जूम इन करके पिक्चर में नहीं देखेगी. एम आई राइट? थिएटर में तो जूम इन करके नहीं देख सकते हम, तो वो उस हिसाब से फिल्म बनाते हैं और डायरेक्ट करते हैं टोटलिटी में. एंड व्हेन यू आर सीइंग अ मूवी, यू आर सीइंग सो मेनी कैरेक्टर्स एट सेम टाइम. ओके, कम से कम आप 3-4 कैरेक्टर एक साथ देखते हो. ओके, और जो चीज़ होती है वो सिनेमैटिक होती है. जब आप वॉक कर रहे हो, आपके बाल उड़ रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है. जब क्रिकेटर वॉक कर रहा था कुछ नहीं होता, एक बैट रहता है, हम होते हैं तो कुछ नहीं होता है, पीछे ना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना कुछ होता है. तो उसको आप किस लेवल पे ऊपर लेके जा सकते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, when you're working with people like normal clients who are coming to you, you have to do 100 times better job than what you do for celebrities. Because जो नॉर्मल बंदा है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, तो उसका लेवल आपको और ऊपर लेके जाना है, क्योंकि उसको कोई रास्ते पे जब वो चलेगी या चलेगा उसको सिनेमैटिकली कोई अपलिफ्ट नहीं करने वाला है, अनलेस अनटिल उसने खुद ने अपनी ट्रांजिशन कोई रील बनाई हो. फिर उसके लिए भी उसको म्यूजिक का हेल्प लेना है. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि मैं अपना काम किस तरह लिफ्ट करूं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिस्ट 3 चीज़ों से बनता है जो मैं हमेशा जानता हूँ: एजुकेशन, सेकेंड एजुकेशन, एंड मोर एजुकेशन. एंड हाउ दैट विल हैपन? हाउ दैट विल हैपन? बाय चूजिंग राइट पार्टनर्स. राइट पार्टनर लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है. आपके पार्टनर्स, राइट, बचपन में जो हमारी पढ़ाई होती है वो हम तो चूज नहीं करते ना, अपने पैसे से नहीं जाते. हमारे माँ बाप ने पैसे दिए तो उन्होंने कुछ तो हेल्प किया है हमारे गाइडेंस में. फिर जब हम बड़े होते हैं हम चूज करते हैं अपनी एकेडमी की हमें भी कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना है. राइट, हम अपने माँ बाप को सजेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, ये स्कूल में जाना है, यहाँ से पढ़ाई करनी है. जब आप 16 के हो जाते हो तो आप सोचते हो कि ये एकेडमी जाके अपना हेयरड्रेसिंग कोर्स करूँगा. जब आप प्रोफेशनल बनते हो then you have to choose your right partner who will help you emotionally, with education, points, पैसा, ट्रिप, ये सब देते हैं, सब ब्रांड्स देते हैं, सब मिलता है. बट क्या इमोशनली वो आपके साथ कनेक्टेड है? क्या एजुकेशन में आपके साथ कनेक्टेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव ऑलवेज चूजन राइट पार्टनर इन माई लाइफ. ऑलवेज. आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बीवी हो, अगर आपको रॉन्ग पार्टनर मिले आपकी लाइफ खराब हो सकती है. उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस में
रॉन्ग पार्टनर मिले आपका बिजनेस डिजास्टर हो सकता है। मैंने हमेशा राइट पार्टनर चूज किया है और कोशिश की है, जो चीज़ मेरे पार्टनर ने मेरे साथ की है मैं कभी लाइफ में नहीं भूलता हूँ। तो मुझे भी जब भी लॉरियल और मैट्रिक्स जैसे ब्रांड ने सपोर्ट किया, मैं लाइफ में कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और इमोशनली मेरे साथ रहे हमेशा। और पार्टनर जब होता है तो हमें कई बार जब दिन गुजर जाते हैं किसी कंपनी के साथ, ऐसा होता है ना कि जब 10 साल बाद दोस्त कि आप बोर होने लगते हो एक इंसान से या उससे वो होते हो, हम बात नहीं करते। उसी तरीके से जब आपका जो बिजनेस पार्टनर भी होता है, हमें कई बार ग्रज होते हैं बिजनेस पार्टनर से, यार मजा नहीं आ रहा, हमें वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे, हमें वो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। सो ऑलवेज स्पीक अप विद योर पार्टनर्स, स्पीक अप विद योर बिजनेस पार्टनर्स। They will solve the problem for you. They are meant for you. They want you to grow. And I have always done that in my life. Whenever I had any issue, I have spoken to L'Oreal and Matrix, and they're always there. वो कारपेट बिछा के आ जाते हैं कि आपके लिए हम सब करेंगे, और मेरे लिए नहीं, वो सब हेडरेसेस के लिए करते हैं, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एजुकेशन ही मांगी मेरे लिए और मेरे टीम के लिए, और उन्होंने हर चीज सेल्फलेसली की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज़ें भूलो मत। हमारा क्या होता है कि हमें जब सब कुछ मिल जाता है हम चीज़ें भूल जाते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, कि अभी ये चीज़ मिल गई हमें इधर से लॉरियल से, हमें से अभी दूसरा ब्रांड हमें क्या दे रहा है। सो ऐसे ह्यूमन बीइंग हम चीटर बन जाते हैं। सो वी ऑल्सो हैव टू रिटेन दैट, वी also have to have some kind of ethics as a hairdresser, that we should never ever forget things what people have done for you when you were nothing. When I was nothing, they were there to support me. When other companies were offering me money and salon chairs and salon equipment and salon interior, they were offering me something which nobody will take away from me till I die. एजुकेशन आपसे कभी कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। आपका सैलून जल सकता है, आपकी चेयर 10 साल के बाद खराब हो जाएगी, लेकिन एजुकेशन सिर्फ आपको एक स्ट्रॉन्ग हेडरेसर बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सोच बहुत कम लोगों में होती है, जो कि लॉरियल और मैट्रिक्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, और इसी वजह से हम सब इतने स्ट्रॉन्ग हेडरेसर्स बने इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We love you. Believe in yourself as a hairdresser, which is so important. हमें अपने आप के अंदर बिलीव करना और ड्रेसअप होके आना है काम पे, यू नो, यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। कभी आपने देखा है पायलट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, कभी देखा है पायलट चप्पल में आया और प्लेन उड़ा रहा है? कहाँ जाना है? भोपाल, लखनऊ, आप कहाँ जा रहे हो? आप लखनऊ जा रहे हो? आप क्या करोगे एज ए पैसेंजर? आप वो प्लेन में चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे प्लेन में। उसको प्लेन उड़ाना आता है, वो पायलट को प्लेन उड़ाना आता है, आप चढ़ोगे वो प्लेन में? नहीं। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया जो कैप्टन ऑफ द शिप है। पायलट इज द कैप्टन। व्हेन क्लाइंट इज सिटिंग ऑन योर चेयर, यू आर द कैप्टन, यू आर द कैप्टन। इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज लाइक दिस, आपका टेल बूम इधर लगा है, आप ऐसे खुजा रहे हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, आप इधर खुजा रहे हो, हाँ, आपकी ड्रेसिंग बराबर नहीं है ना, उसका क्या होगा? आपके क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस लूज होगा आपसे एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, बिकॉज यू आर नॉट ड्रेस्ड अप फॉर वर्क। वाई वी कपड़े पहनते हैं, हम पूरे पॉलिश होने चाहिए, आप अच्छे लगने चाहिए, और जो आपके बाद है वो बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए, क्योंकि आप वही चीज बेच रहे हैं। अगर आप ही खराब लग रहे हो और आपके बाल खराब लग रहे हो और आपके कपड़े खराब लग रहे हैं, वी आर ऑल फैशनिस्टास। अगर वही खराब है तो आप बिलीव इन योर वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि आप जैसे अपने आप को दिखाओगे, लोग आपको वैसा लेंगे। अगर आप दिखाओगे कि आप एक लेबर हो और आए हो, आज आपका काम है, आज आपकी 9 घंटे की शिफ्ट है, बस आपको काम करके जाना है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो दूसरा कैसे करेगा? कैसे करेगा? नहीं करेगा। बट हम, जब आपको कोई क्लाइंट टिप देता है 50 रुपए, 100 रुपए, आप सब रख लेते हो, रखते हो ना? यस सर। और फिर अपने आप को आर्टिस्ट भी बोलते हो।
कभी आर्टिस्ट टिप लेता है? नहीं लेता। तो फिर आप क्यों लेते हो? क्योंकि हम अपने आप को वैसा देखते हैं तो लोग भी हमको उस तरह से सोचते हैं। मुझे जब जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, मैंने कभी भी लाइफ में मनी टिप नहीं लिया, मैंने सिर्फ एजुकेशनल टिप लिया लोगों से। मैंने आज तक 1 रुपया टिप नहीं लिया है, और मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी, और तब मैं हैकेट का 20 रुपया चार्ज करता था 1993 में। भी 2025 है, ठीक है। I used to charge 20 rupees. Now everybody knows my fee, what I charge. And I used to need a lot of money. I thought I'll get extra money if somebody tips me, but I never, because I always felt that I'm an artist. And I should know my worth, that my worth is only this. Why should I charge more? कभी आपने देखा किसी डॉक्टर को आपने टिप दिया है, उसने अच्छा ऑपरेशन किया है, अरे बेटा दूध जलेबी खा लेना, अच्छा आज किडनी अच्छी निकाली आपने, हुआ है कभी? शाहरुख खान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कभी प्रोड्यूसर देगा जाके 500 रुपये रख ले, क्या डालो महाराज, इज एन आर्टिस्ट। सो व्हाई डू यू गाइस फील लेस फॉर योरसेल्फ? आप सब आर्टिस्ट हो, तो फिर क्यों ले रहे हो टिप? मना करो टिप। जब आप टिप नहीं लोगे और क्लाइंट आपसे खुश है, वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। टेक दैट। If you're not taking anything from me, this perfume is for you. Okay, this watch is for you. Okay, this is for you. I've got some nice t-shirt for you. I've got a bag for you. Then you build your relationship. This is your genuine connection. Heart to heart. They'll respect you as a human being. You both will go out for dinners together. मगर जब आपको टिप देगा तो आपको अपने उसी काम के लिए बस यूज करेगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो अपना वर्थ पहचानो कि हम टिप क्यों ले रहे हैं, हमें टिप नहीं लेना चाहिए। दिस इज माई वर्थ। आपको आईफोन कितने का आता है? जितने का आता है उतने का ही ना। अमीर के लिए भी वही प्राइस है, गरीब के लिए भी वही प्राइस है, इसमें कुछ नहीं ना बेचा है, गरीब है यार इसको। अगर वो उसका वर्थ नहीं है तो 256 GB लेगा, अगर उसका पैसा है तो वो 1 TB लेगा। Am I right? तो हमारी जो फी है, हमारी जो चीज है, वो सबके लिए स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। आदमी को देख के पूड़िया बांधना हमारा काम नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप वो करोगे, लोगों को पता चलता है, तो वेयर यू बिकम डिसऑनेस्ट, एंड व्हेन यू आर डिसऑनेस्ट, पीपल विल स्टॉप कमिंग टू यू। मैंने हमेशा इस चीज में बिलीव की है कि जो भी है आप सबको सच बोलो। अगर मैं किसी जो बड़ा सेलिब्रिटी हो, जो भी हो, उससे जो पैसे लेता हूँ उतना ही एक नॉर्मल आदमी से पैसे लेता हूँ। किसी के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए बाल सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। जो बाल है वो दिखना चाहिए, दैट इज माई कैनवस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कभी भी लाइफ में जो चीज चार्ज करते हो ना, सबके लिए एक ही करो। ये बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हेयर इज डिफरेंट, लेंथ ऑफ हेयर इज डिफरेंट, इट इज सब्जेक्टिव, बट नेवर एवर ऑन द स्टैचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। That reduces your stature as a human being. You have to become a bigger human being. Then people will start respecting you. कि wow, ये कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है यार, इनका जमीन कितना स्ट्रांग है। तो जब आप अपना जमीन स्ट्रांग करोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू बिल्ड आवर हेयर ड्रेसिंग कम्युनिटी। वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ। हमारे जूते सही होने चाहिए, हमारे कपड़े सही होने चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, और हमारा SOP स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए हर एक हेयर कट एक ऑपरेशन की जैसा होता है, चिप्स होते हैं। और जब मैं कोई हेयर कट करता हूँ, मैं हर चीज़ पहले तैयार करके रखता हूँ। सब चीज़ सैनिटाइज होनी चाहिए, आपके सेक्शन क्लिप्स, आपकी ब्लो ड्रायर, आपकी सीजर, आपकी टेक्सचराइजिंग सीजर, आपका टेल को, एवरीथिंग शुड बी देयर विद योर राइट देयर। यू कांट रन अवे इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, अरे मेरा वो रह गया, अरे मेरा वो रह गया, अरे मेरा वो रह गया। Client will lose interest in you. That means you have not done your SOPs properly for that haircut. So everything has to be ready. मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, कोई डॉक्टर जो कि बैडली ड्रेस्ड है या दिस, कुछ नहीं मिला मुझे। गूगल पे भी कुछ नहीं था, मगर मैं सर्च करूंगा बैडली ड्रेस्ड हेयर ड्रेसर तो बहुत सारे मिलेंगे मुझे कुछ भी नहीं मिला। Look, this is an image where the first time in India,
GQ awarded a hairdresser for. We all should take a pride award in GQ for a best dressed man. They must be noticing me everywhere on my social media how I dress up, why I go for parties, and then they sent me an email that we want to award you amongst 50 dressed man in India. 50 लोगों में से एक मैं था. और only hairdresser for the first time in India. Consult like an expert. The most important thing, consultation. हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जब क्लाइंट बैठता है तो हम उसको मिरर में देखते हैं और फिर बोलते हैं आपकी नाक मोटी है, आपका फोरहेड बड़ा है, आपके शोल्डर्स बड़े हैं, एम आई राइट, आपके बाल पोरस है, आपको थोड़ा स्पा भी चाहिए, आप ब्लीचिंग करोगे तो बाल डैमेज होंगे, फिर भी करूंगी वो भी करूंगी, आप सब चीज चिपकाते हो. होता है ना ऐसा कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? आपके ऊपर प्रेशर भी होता है ना सेल्स का. हाँ, बट जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो मैं हमेशा 360 डिग्री एंगल से कंसल्टेशन करता हूँ. मैं हमेशा ये सोचता हूँ जो मेरा क्लाइंट है वो सिर्फ कुर्सी पे नहीं बैठा है, वो बाहर जाएगा, पार्टी पे जाएगा, कौन कौन तरीके के कपड़े पहनेगा, उसका प्रोफेशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उसकी हैबिट्स क्या है. मैं उनको हेल्प करता हूँ कि आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ यू शुड डू योर हेयर एट होम. आप करते हो, सिखाते हो अपने क्लाइंट्स को. मैं आधे से ज़्यादा एक्टर को सिखा चुका हूँ अपने बाल कैसे ब्लो ड्राई करना है. विराट कोहली अपनी बियर्ड खुद शेव करते हैं लास्ट 6 साल से, एक्सपर्ट हो गए हैं. सैफ अली खान अपने ब्लो ड्राई बाल खुद करते हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं. क्योंकि वो जो काम मेरा था मैंने उनको सिखाया है. कोई भी सीख सकता है ना, हम सब सीख रहे हैं ना, कोई सिखाएगा तो सीखेंगे ना. तो इसमें ऐसा नहीं है आप एक्टर हो या क्रिकेटर हो तो मैं सीखना नहीं चाहोगे, आपको आना है. जब आप सिखाओगे तो आप सेल्फलेस हो, वो आपके अंदर बिलीव करेंगे. तो जब मैं कंसिडर करता हूं तो मैं हाइट, बॉडी, शोल्डर्स, बैक सब देखता हूं. कलर क्या पसंद है, कलर क्या पहनना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है. अगर वो डॉक्टर है तो इसका मतलब नहीं कि बोरिंग हेयर स्टाइल दी जाए. A doctor can look as sexy as possible, as glamorous as possible. और डॉक्टर सिर्फ काम पे, काम के टाइम पे अपना एप्रन और ये सब पहनते हैं, बाद में जब वो जाते हैं they have to look cool and nice. So that is very important. Your salon is your brand. So you need to understand that how do you want to present your salon. So that is very important. आपको अपना salon एस्थेटिकली स्ट्रेट लाइन पर रखना है या आपको अपना salon फंकी रखना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू विजुअलाइज. और जो आपका ब्रांड बनाना चाहते हो उसको कम से कम 5-6 साल लगते हैं. अब आज कोशिश करोगे वो 5 साल बाद. हम में से कितने लोग अपना फोन चेक करते हैं सो के? जब सुबह उठते हैं कितने लोग फोन चेक करते हैं? मैं तो पूरे टाइम फोन पे ही रहता हूँ. मेरी बीवी परेशान है, पूरे टाइम में सोशल मीडिया पे रहता हूँ जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ. तो मैं सोने से पहले फोन पे चेक करता हूँ, उठने के बाद फोन चेक करता हूँ. तो 4 out of 5 people are स्मार्टफोन यूजर्स. हम में से कितने लोग गूगल सर्च करते हैं कोई भी चीज पता करने के लिए?